like to call upon our next speaker for today's evening, that is Dr. Arun Chandan. And he will speak on the topic business and career opportunities in the medicinal plants sector. So before I call upon him, I would like to read his little bit of credential. He is enthusiastic, dedicated, and qualified medical specialist in Ayurvedic medicine and surgery with a doctorate in medicinal diversity conservation in mountains. Work ahead on convergence on models in traditional systems of health and care and related services in government and NGOs. He had been executive director of the Mountain Forum Himalayas. So this is all we have for our next speaker, Dr. Arun Chandan. Dr. Arun Chandan, are you there? Have you joined? Yes, I am there. So, okay, the mic is yours, and you can start this online session of second speaker. Thank you, sir. So good afternoon, everyone. So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Can you see the PPT? Yes, sir. Okay, thank you. चलिए, तो पायल ने इतनी अच्छी बातें बताई, अब लंदन से वापस आते हैं और पायल मैं आपको एक और नया सेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं। आप लंदन में रह के ये भी देखिए कि हम हिमालय को, हिमाचल को लंदन से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक विषय के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो सेक्टर है इंडिया के अंदर, इसमें किस तरह से बेसिक साइंस के या लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, और दूसरी बात किस तरह से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से यहाँ पर हम अपना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट क्विकली, क्योंकि आपने मुझे इससे 15 मिनट का वक्त दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये 10 स्लाइड दिखा करके एक ओवरव्यू में दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अपना सिंसियर थैंक्स एक्सटेंड करना चाहूंगा माय टू डॉक्टर ब्रिजेश चौहान साहब, जो जिनको लगा कि ये विषय जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए, हम सबके लिए। वेरी मच एंड ऑल योर टीम। सो आप हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहते हैं जो जीवंतता जिससे बनी रहती है और नए नए आयाम आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसे जारी रखिए। बहुत धन्यवाद। मेरा जो आपसे वो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर के बारे में बात करूंगा। इसमें स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो जस्ट So basically, I work for Ministry Ayush, National Medicinal Plant Board, Government of India. It has 7 centers across the country. So we work on supply chain management of medicinal plants sector. So basically, medicinal plant sector का ये single stop solution है. Anything related to medicinal plants, either their cultivation, conservation, everything is taken care through these centers. So my center is based in Jogindanagar. So I look after 7 North Indian states: Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and Himachal Pradesh. So I just give some of the background. Basically, आपने देखा है कि कोविड-19 के दौरान मेडिसिनल हर्ब्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत डिमांड बढ़ गया है। पर्टिकुलरली जितने भी आयुर्वेदिक काढ़े हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी डिमांड। अब मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं कि इससे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 7% एनुअल ग्रोथ पूरे दुनिया में बढ़ रहा था, लेकिन पिछले क्वार्टर के अंदर ये डिमांड इट हैज गॉन अप टू 30%, व्हिच इज हाईएस्ट एवर इन द लास्ट 100 years in this country. So basically जितना भी plant based medicines हैं, ये have their holistic and preventive healthcare value along with their nutritional value. So medicinal plants form a major resource base for our indigenous healthcare tradition. You know, there are 5 systems of medicine which have been now considered as Ayush. So 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से मंत्रालय बना दिया जिसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, and now 6th system has been
introduced as Swarigpa, that Bhod Chikitsa Paddhati or Tibetan system of medicine. That is Swarigpa. So now there are 6 Indian systems of medicine which have been included in an independent ministry which is known as Ayush Ministry. So but in ministry के अंदर में जितने systems हैं उसमें से भी 3 systems ऐसे हैं जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, जिनके जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उसका रॉ मटेरियल दैट कम फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स. सो ये वाइल्ड से भी आता है, कल्टिवेटेड से भी आता है, जो हमारे आज के इस टॉपिक का इंटरेस्ट का विषय है. दूसरा, प्लांट बेस्ड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल इवन टू द पुअर पीपल. आपने देखा होगा क्योंकि आप लोग सारे अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक ऑल नेटवर्क हुआ करता था ट्रेडिशनल हीलर्स का, एथनोबॉटनी प्रैक्टिसेस का. हम लोग प्लांट्स को लोकली यूज करते रहे हैं सदियों से. और WHO ने भी कहा है कि मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन मेडिसिनल प्लांट्स फॉर देयर हेल्थ केयर नीड्स. तो अगर मैं थोड़ा सेगमेंटेशन आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लगभग 2400 प्लांट स्पीशीज हैं, जो कि जितने हमारे कोडिफाइड सिस्टम्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए जिनमें दवाइयां बनती हैं, लगभग 9800 कारखाने हैं पूरे देश के अंदर जो हर्बल और आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन को बनाते हैं. उसमें से 192 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो वेस्टर्न मेडिसिन में यानी एलोपैथी में यूज होते हैं, होम्योपैथी में 468, स्वरिकपा में 253, इसमें यूनानी में 503 और 1128 सिद्धा में, और सबसे ज्यादा 1587 आयुर्वेदा में यूज होते हैं. और अगर हम इसकी डिमांड एंड सप्लाई की बात को देखें तो अभी हमारी एक पुरानी स्टडी 2014 उसमें 242 स्पीशीज जो हैं वो उनका एनुअल ट्रेड जो है वो मोर देन 100 मीट्रिक टन है, और इनका जो है लगभग एस्टिमेटेड कंजम्पशन रिकॉर्डेड जो है वो 6 लाख मीट्रिक टन का है. तो अगर हम इसकी सप्लाई साइड को देखते हैं तो अगर हम हिमाचल की बात भी करें, हिमालय की बात भी करें, तो लगभग हमारे यहाँ से 36 स्पीशीज है जो कि में जिनका 100 मीट्रिक टन से ज्यादा ट्रेड है, और लगभग 200 के करीब पौधे ऐसे हैं जिनको हम अपने जंगल में राइट होने के कारण उनको निकालते हैं, उनके ऊपर हमारी आजीविका निश्चित है. उसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 78 है, टोटल फॉरेस्ट से 114 स्पीशीज निकलते हैं, वेस्टलैंड में से 59 है, और कल्टीवेशन से हम लोग 50 की आपूर्ति कर पा रहे हैं. और इंटरेस्टिंगली 15 स्पीशीज जो हैं वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अभी, जिसमें मुलट्ठी नंबर 1 पे है जो कि हमें अफगानिस्तान से ज्यादा आती है. तो जिन स्टेक होल्डर्स की हम बात करें कि इसमें कौन कौन शामिल है, आप जानते हैं कल्टीवेटर है, कलेक्टर्स हैं जो जंगलों से इकट्ठा करते हैं, ट्रेडर्स हैं, सप्लाई चेन इंटरमीडिएटरीज हैं, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्री है सारी की सारी जैसे बात करी हमने, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, फोक हीलर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पॉलिसी मेकर, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल. तो हम लोग इन सब के साथ काम करते हैं, इनके काम को हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जिसमें कि अब हमारा कैरियर और हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सप्लाई चेन समझाना चाहूंगा कि असल में इस पूरे मेडिसिनल प्लांट सेक्टर का सप्लाई चेन क्या है. आप देखेंगे कि यहाँ मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेज हैं, इसमें नंबर 1 पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो वाइल्ड कलेक्शन है, नीचे हम कल्टीवेशन की बात करेंगे. तो अगर हम देखते हैं कि जैसे वाइल्ड कलेक्शन वाले जो स्पीशीज हैं इनमें हमें एश्योर्ड प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का चैलेंज इस समय में आ रहा है. आप जानते हैं हिमालय से हमारे यहाँ से कड़ू, पतीश, पोडोफाइलम, बनककड़ी वगैरह ये जंगलों से निकलते हैं जिनका वैल्यू हमें ठीक से मिल नहीं पाता है. ट्रेडर हमारे साथ, मिडिल मैन हमारे साथ हमें अच्छा प्राइस नहीं देता है. तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है जिसपे हम लोग काम करें. तो यहाँ जो लोग लाइफ साइंसेज बॉटनी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक होमवर्क है, उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ निकल करके आती है. आज क्या हो रहा है कि जैसे अब पायल लंदन में बैठी हैं, यहाँ ट्रेसेबिलिटी के इश्यू को लेकर के बहुत सारे मसले हो रहे हैं. कुछ स्पीशीज हैं जो साइटीज की लिस्ट में आते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पीशीज हम कल्टीवेट कर सकते हैं, अगर हम कल्टीवेशन में उसके जियो कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर हम यहाँ से बाहर उपलब्ध करा सकते हैं तो हमें बहुत बड़ा वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. तो जितने हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग, वो इस तरह के सिस्टम्स बना के अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि ट्रेसेबिलिटी में टेक्नोलॉजी, AI का यूज कैसे किया जा सकता है. हम लोग एपेडा के साथ सर्टिफिकेशंस के लिए काम करते हैं कि इनकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या दूसरे सर्टिफिकेशंस हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. हम लोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जितनी भी हमारी वाइल्ड कलेक्शन होती है मेडिसिनल प्लांट्स की,
उनका गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस टू इंश्योर देयर सस्टेनेबिलिटी, ताकि हम जंगल से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करें, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को क्रिएट ना करें, बट हम इंश्योर करें कि जो चीज निकाली जा रही है वो साइंटिफिक तरीके से निकाली जाए और उतनी निकाली जाए जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है नेचर की वहां पे। तो इसलिए जीएफसीपी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये प्रोटोकॉल हम लोग सिखाते हैं फार्मर्स को, और इसके साथ में सर्टिफिकेशन का मैंने जिक्र पहले किया कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से मोटा मोटी तौर पे एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के एरियाज है जिसमें कि यूथ आ सकता है आगे। अगर मैं कल्टीवेशन की साइड बात करूं तो हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। आप जैसे डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश जी बात कर रहे थे, इन्होंने रोडू के एरिया में बड़े स्तर पर मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन करी, 500-600 फार्मर्स के साथ इन्होंने कोशिश कर रहे हैं किसानों को जोड़ करके होम हर्बल गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चिरायते की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब में इनकी कल्टीवार्स कौन सी अच्छी वैरायटी है, अब ये एग्रोनॉमी का विषय है। जितने भी हमारे एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे हैं वो इस तरफ आकर के इसकी कल्टीवेशन को आगे ले जा करके इसको एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं या बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारा वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है, मैंने अपेडा यहाँ लिखा है। अपेडा में लगभग 32 एजेंसीज हैं जिनके साथ मिलकर के हम इंटरफेसिंग किसान के साथ मिलकर कर सकते हैं, फैसिलिटेशन कर सकते हैं, फिर इस तरह से हम सेंटर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ये बॉटनी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के लोग हैं उनके लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिसिनल प्लांट सेक्टर के अंदर कि सर्टिफाइड कल्टीवर्स के साथ में आप इनके नर्सरीज को लगा सकते हैं, इनके सीड जर्मिनेशन सेंटर्स को खोल सकते हैं, सीड सप्लाई सेंटर को खोल सकते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे देश में। और खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि हिमालय में हमारे जितने 32 स्पीशीज जो हम कल्टीवेशन के लिए हमने अभी ऑफर किए हैं, पूरी दुनिया में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा द्वार एक एम्प्लॉयमेंट का खोलते हैं। इसी तरह से ये कल्टीवार वैरायटीज की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारा रिसर्च हमारे देश के अंदर हुआ है लेकिन किसान तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको किसी तरह से पहुंचाएंगे। और दूसरा, अगर मैं हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में जाता हूँ, कलेक्शन वाले पार्ट में जाता हूँ, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे सामने। जितने भी हमारे इनकी ड्राइंग है, स्टोरेज है, अगर हम फार्मर के पार्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करना, ड्राइंग करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन, उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एट द, इतने सारे एरियाज हैं जो कि बेसिक साइंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उस पर काम कर सकें। उसके बाद इमीडिएटली हमारा वैल्यू एडिशन का काम आता है कि मेडिसिनल प्लांट्स का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है क्या हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, किसी चीज का पाउडर, किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम इंडस्ट्री को अवेलेबल कराने के लिए कोई छोटा यूनिट लगा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। हम लोग स्टार्टअप के अंदर जाकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, सेमी प्रोसेसिंग के छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह से एक फूड एज मेडिसिन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल करके आ गया है। एफएसएससीआई ने लगभग 436 मेडिसिनल प्लांट्स को एज फूड सप्लीमेंट की परमिशन दे दी है, जिससे हम लोग बिल्कुल निचले स्तर पे, किसान के स्तर पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। हम बहुत और कुछ इनोवेट कर सकते हैं। जैसे मैं रोडू की बात करूं तो आपके रोडू में बड़ा टिपिकल मसालों का बहुत प्रचलन है। तो क्या हम उन मसालों पे बेसिक R&D करके कोई इनोवेटिव वाइल्ड मसाला लॉन्च कर सकते हैं? यानी इस तरह से देयर कैन बी नंबर ऑफ आइडियाज। हर हिमाचल के अलग अलग निश एरिया से हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि कॉलेज का, कॉलेज टीचर्स का, हम सबका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बहुत सारा आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे गांव में भरा पड़ा है। बहुत सारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं जो कि टाइम के साथ ना डॉक्यूमेंट होने के कारण डाई कर रहा है, बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड टू डॉक्यूमेंट देम, एंड आई एम श्योर कि अगर हम इसको थोड़ा तरीके से करेंगे तो हम ये ड्रग डिस्कवरी सेगमेंट में हम कुछ नया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मार्केटिंग में भी हम लोग इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, बड़े सारे इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ क्विकली, क्योंकि मेरी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी और बताना चाहूंगा। सरकार अभी एक वृक्ष आयुष योजना भारत सरकार लेके आ रही है। तो इस वृक्ष आयुष योजना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोविड के पैकेज के तौर पे लगभग 4000 करोड़ का एक पैकेज आत्मनिर्भर भारत में भारत सरकार ने दिया है, जिसमें कि 4112 करोड़ का ये योजना है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि
लगभग 1 लाख हेक्टेयर मेडिसिनल प्लांट्स एरिया अंडर कल्टीवेशन आएगा, जिसमें 32 हिमालयन स्पीशीज है, और हम लोग इसको 10 लाख हेक्टेयर लेकर के जाएंगे। और इसमें एश्योर्ड यूथ के लिए, जिसके पास लैंड है, आप लैंड लीज पे लेके काम कर सकते हैं, आप किसानों के साथ मिलकर के उनके क्लस्टर बना के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के साथ में एग्रीमेंट करके ये तैयारी की है कि युवाओं को किस तरह से इसके अंदर शामिल किया जाए। इसमें क्या हो रहा है कि लगभग 200 मेडिसिनल प्लांट्स के लिए सब्सिडी है, वो उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे हम गंगा का कॉरिडोर बन रहा है, गंगा के किनारे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, इसी तरह से एक बृहद पंचमूल यानी स्पीशीज हमारे कॉरिडोर बन रहे हैं, अशोक का कॉरिडोर है, और दूसरे हम लोग अतीश का, कुटकी का, जितने हमारे हिमालयन स्पीशीज है उनके कॉरिडोर भी हम बना रहे हैं। सो लास्ट में मैं बताना ये चाहूंगा कि ये जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है, इसको अगर मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव उसमें देखूं तो देखिए, यहाँ स्किल इंडिया से भी इसका लेना देना है काफी। हम स्टार्टअप इंडिया में किसी नए इनिशिएटिव के तहत इसमें काम कर सकते हैं। हर्ब्स एज फूड एंड फूड एज मेडिसिन की बात मैंने आपसे की। मेक इन इंडिया में हम इसको फूड प्रोसेसिंग में लेके आ सकते हैं। बहुत सारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी लगभग 35 से लेकर के 80-90% सब्सिडीज एमएसएमई में और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में उपलब्ध है। हमारे यहाँ से कल्टीवेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए उपलब्ध है। उसी तरह से खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और कमीशन के साथ मिलकर के खूब सारे इसके अंदर उपलब्ध हैं, और इसकी सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन करके हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करके एक एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खोल सकते हैं और नेचर कंजर्वेशन में हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। सीएम स्टार्टअप हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इंक्यूबेटर्स हैं। आप इंक्यूबेशन में जाकर के अपने किसी विचार पे, आइडिया पे, इस पे काम कर सकते हैं। इन विषयों के साथ मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं आप सबको एक कॉल देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, और इसमें न केवल एम्प्लॉयमेंट की बल्कि बहुत बड़े स्तर पे हम इसमें अपना कैरियर भी देख सकते हैं। हम लोग अपने मास्टर्स कोर्स, अपना पीएचडी और मास्टर्स और बीएससी हम इस तरह से बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी में, इकोनॉमिक बॉटनी में या फाइटोकेमिस्ट्री में देख करके हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ के अपना कैरियर भी इसमें चुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।